is pretty much good. Hi guys, welcome back to my channel. I know, दो vlogs देखने के बाद you were expecting कि ये video भी vlog होने वाली है, but nothing exciting happened and I didn't go anywhere. तो कुछ था नहीं guys दिखाने को, honestly. But I really wanted to film a skincare video because I wanted to share my experience. Before मेरे skincare चीज़ के पहले I used to face a lot of blackheads, a lot of bumps on my forehead. Now it's very less, so I thought I have found the right products for my skin. और उसी से related I've collected like a list of I think more than 20-25 things और I'm really excited to share it with you guys. ऐसा कुछ specific नहीं है, it's just my favorite skincare products और जिनकी मैंने bottles empty कर चुकी है, container empty कर चुके हैं. It's basically skincare, body care I'm not going to take. So it's cleanser, toner, serum, moisturizer and sunscreen and lip balm as well. Just a disclaimer before I start that I'm not a professionalist. This is what has worked for me. I'm not sure if it's going to work for you, but you can try and test it if you have the same skin as like me. Okay, so let's start with the cleanser. So the first one is this one. This is Neutrogena something, I don't remember, but I'll put the picture here so that you understand. So ये वाला I used to use very early. It generally was really nice, but I don't find it anymore क्योंकि मेजरली आउट ऑफ स्टॉक रहता है. और अब मेरे को लगता है मेरे पास बेसिकली एक है प्रोडक्ट जो मेरे स्किन और मेरे फेस को बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई डोंट go back to that product, but I really like that product. If you do get your hands on this, so please do buy it. It's a very nice cleanser. Cetaphil is a very gentle cleanser. This one, and I used to use this one, and इसका थोड़ा foamy texture नहीं है. It's very watery, like you don't feel like something is getting cleaned. But I didn't get acne because of this. Not when I'm down or not when I'm sick. So मेरे को बहुत पसंद है ये cleanser, but again I have that routine with me, तो मैं उसको तोड़ना नहीं चाहती हूँ अब specifically क्योंकि skin is behaving and I don't want it to like get bad. Cetaphil is nice, but वो थोड़ा foamy texture नहीं है, तो I don't go back to that product. So Cetaphil is a thumbs up. I really used to love Cetaphil, like 2 years Cetaphil, and it's like beautiful. Now to my favorite and the one that I really love is this simple cleanser, and it's so good. One pea-sized dot creates so much foam. मुझे लगता है कि मेरा फेस एक्चुअली क्लीन हुआ है, तो इसीलिए मैं वो क्लेंजर से और मैं वो फेस वॉश से बहुत स्टिक टू फिनिश्ड bottles and bottles of it. So yeah, that's the last product in the cleanser list. On to the next one, which is toner. I have 3 toners. First one is Kama Ayurveda. इसको मैं here and there apply करती हूँ. It's not like it's expensive, तभी मैं इसको यहाँ वहाँ यूज़ करती हूँ अगर actually कुछ ज़्यादा ही बॉम हो. ये है Kama Ayurveda वाला. तो ये रोज़ वाटर है and it's so refreshing, so nice, so beautiful. So I keep this for special occasions, but it's like bomb. अगर आपके पास इतना budget है that you can spend this much on a little quantity, then go for it. It's going to work for you. It's beautiful. It's a plum green tea toner, and it's beautiful. It's refreshing. It's very soothing and skin को actually बहुत अच्छा लगता है क्योंकि in summers you do want वो अच्छा effect on your skin. Now to the one that I use every day is the Simple one. Simple is the best toner. तो समझ रहे हो कि Simple का ही face wash, Simple का ही toner. It's refreshing. It's fresh. It's not like refreshing, but it's fresh. It actually does the job. It calms my skin. It just brings that freshness to my face before I apply serum.
So that's my all-time favorite. That's the simple one. The serums list. I have couple of serums. All these serums you have to first try. Just the disclaimer कि ये सब थोड़ा try करके ही करना. Do a patch test. I would really recommend कि patch test करो and then see कि if it's working for you and then go forward with it. There are 2 serums which I use on daily basis. Not daily basis, when I have time I try and use this one. So first is niacinamide, which basically focuses on the texture and lightens your dark spots that you might have gone from acne. No cap, but it's my favorite. Like, it has changed so much for me. Like I was talking about the texture and everything, it's just like beautiful. और मेरी स्किन पे इसका इफेक्ट इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. आई रियली लाइक इट और इसीलिए मैं इतना रेव कर रही हूँ इसके बारे में. तो नाइसिनामाइड इज बेसिकली आपको क्लेंस करना है, फिर आपको टोनर लगाना है, फिर आपको नाइसिनामाइड, फिर मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन. दैट्स सिंपल. बट डू गिव अ ब्रेक ऑफ लाइक एटलीस्ट 5 to 6 seconds between every single step. तो नाइसिनामाइड इज लाइक दैट. सैलिसिलिक एसिड आई अप्लाई इट ड्यूरिंग द नाइट. सो मैंने इसको इंट्रोड्यूस ऐसे किया था अपनी स्किन में 1 week 1 time, next week 2 times if it's suiting my skin, and now I do 3 to 4 days a week अगर कंसिस्टेंसी है मेरी स्किन केयर में. तो सैलिसिलिक का है ऐसे that you have to first cleanse your face, then apply toner, then apply salicylic acid, and then apply a heavy moisturizer because it just strips off your skin because it's acidic. तो आपको इतना घबराने वाली बात नहीं है. एक्सफोलिएट कर रहा है डेड स्किन को, जो गंदी स्किन है आपके फेस पे, इट एक्चुअली इज एक्सफोलिएटिंग दैट. और अगर स्किन लाइक स्ट्रिप ऑफ हो रही है तो आपको हमेशा याद रखना है दैट यू हैव टू स्ट्रेटेजिकली अप्लाई सनस्क्रीन. कुछ भी हो जाए सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है. एसिड यूज़ करने के बाद ऑब्वियसली इफ़ यू आर यूजिंग रेटिनॉल, इफ़ यू आर यूजिंग ट्रेटिनॉल, इफ़ यू आर यूजिंग सैलिसिलिक एसिड, इफ़ यू आर यूजिंग नाइसिनामाइड, एनी सॉर्ट ऑफ, और अगर आप सिरम यूज़ भी नहीं कर रहे हो, स्टिल यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाइलुरोनिक सिरम. सो पहले मैं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट बता दूँ. मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे हाइलुरोनिक कैसे यूज़ करना है. तो what's the point of hyaluronic acid is to plump up your skin, hydrate your skin, and that's going to only happen अगर आप इसको ढंग से अप्लाई करो. मैंने ढंग से अप्लाई नहीं किया था, I got acne cure. तो मैं आपको बता दूँ what you have to do. Obviously हर सिरम की तरह इसको भी लगाना है. आप इसको नाइसिनामाइड के स्विच कर सकते हो. सिरम्स डेली यूज़ नहीं करने हैं. गिव लिटिल बिट ब्रेक सो दैट आपकी स्किन भी थोड़ा कर पाए. बट नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी मैं मिक्सअप कर रही हूँ. forget it. तो हाइलुरोनिक आपको ऐसे करना है, क्लेंस की स्किन, फिर उसके बाद टोनर लगाया, उसके बाद जस्ट विद दैट डैम स्किन जो टोनर से है उसी पे आपको हाइलुरोनिक एसिड लगाना है विदाउट एनी डाउट, उसी के ऊपर ही. इसके लिए आपको वेट नहीं करना है, इसके लिए आपको लगाना ही है, तभी के तभी लगा लो एंड इट्स गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट. एंड दैट्स द राइट वे कि आप अपनी स्किन को टोनर के डैम्प उसी एरिया पे हाइलुरोनिक लगाओ और 1 to 2-3 drops वॉट एवर इज रिकमेंडेड ऑन द पैकेजिंग. ठीक है. और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ और सनस्क्रीन लगाओ. रात को अप्लाई करो तो हैवी मॉइस्चराइजर लगाओ एंड दैट्स इट. विटामिन सी इज बेसिकली टू ब्राइटन अप योर स्किन, give that glow and lightens your dark spots. Cleansing, then toning, then serum, then moisturizer and sunscreen. That's it. These are my favorite 4 serums. I have not used retinol yet. So मेरे को कोई idea नहीं है अभी. I'm 24, so I'm not going on that direction. Lighting का थोड़ा issue हो रहा है because मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है और मैं फैन बंद करके वीडियो बना रही हूँ गाइस. तो प्लीज अप्रिशिएट, गिव मी अ लाइक. ओके. द नेक्स्ट कैटेगरी है मॉइस्चराइजर. आई हैव वेरी लेस मॉइस्चराइजर क्योंकि मेरे पास इतने हैं नहीं. जो 4 मॉइस्चराइजर है, ठीक है. तो लाइट मॉइस्चराइजर से स्टार्ट करते हैं. सेटाफिल एंड सिंपल का ये वाला और सेटाफिल का ये वाला, बोथ are somewhat similar, very light on the skin. और बेस्ट है ये मॉइस्चराइजर.
it is specifically used with, I'm not remembering, it's ceramide free, not ceramide, कुछ तो टर्म होता है, फ्री नॉट ceramide, कुछ तो टर्म होता है, वो चीज़ इन मॉइस्चराइज़र दोनों में नहीं है, तो आप सीरम के साथ ये स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हो, ये दोनों मॉइस्चराइज़र। ये वाला जार इज़ माई फेवरेट, यूज टू बी माई फेवरेट, बट जब से मौसम चेंज हुआ उसका क्या तो फॉर्मूला चेंज कर दिया इन लोगों ने, जिसकी वजह से मेरे को एक्ने नहीं हुआ है, मेरी फ्रेंड को भी सेम मतलब नॉट सेम एक्ने बट उसको भी एक्ने प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल तो आप लोगों को पता होगा कि मैं पॉन्ड्स का जेल वाला क्रीम वाज माय फेवरेट, बट इट स्टार्टेड गिविंग मी एक्ने और फिर मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू दैट, बट डू ट्राई इट बिकॉज इट्स अ गुड मॉइस्चराइज़र, वेरी लाइट ऑन द स्किन। वो है ये डॉट एंड की वाला मॉइस्चराइज़र। ये ऑयली स्किन के लिए ओनली सूटेबल है, ओनली फॉर द विंटर्स। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है, मेरी स्किन ड्राई होती है बिकॉज मैं सिरम्स लगाती हूँ, एसिडिक है और मेरी स्ट्रिप ऑफ भी हुई है स्किन बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप सिंपल का ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जिसमें सनस्क्रीन है, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है यूजुअल बॉटल से, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन लेना है तो ये वाला लो, ये वाला कॉम्बिनेशन मत लो बिकॉज इट्स हैवी, और गर्मियों में अगर आप सर्दियों में देख रहे हो तो गो फॉर दैट वन। नेक्स्ट है सनस्क्रीन कैटेगरी। आई हैव अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन रिकमेंडेशन और मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ट्राई करी हुई हैं, तो मैं आपको एक एक करके सब बता देती हूँ। पहली है माई ऑल टाइम फेवरेट एक्वालॉजिका बिकॉज इट्स वेरी लाइट, वेरी गुड सनस्क्रीन और इट सूट्स माई फेस। अगेन माई स्किन इज़ ऑयली, तो वो थोड़ा लाइट वेट है एंड आई रियली लव इट। एक्वालॉजिका इज़ गुड। देन फिक्स डर्मा का ये वाला सनस्क्रीन इज़ बॉम। इट्स लाइट वेट, इट्स फार्मास्यूटिकल, आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगी ये वाली, और आपको शायद ब्लिंकिट पे भी मिल जाती है, नायका पे तो ऑब्वियसली है, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो प्लीज़ देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डॉट एंड की सनस्क्रीन। अगेन डॉट एंड की का ये येलो वर्जन इज़ गुड। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप विंटर्स में आप इसको कर सकते हो, बट डॉट एंड की का ये वाला वाटरी सनस्क्रीन इज़ बॉम, ब्यूटिफुल। ठीक है, एक्वालॉजिका की तो ऑलमोस्ट सारी सनस्क्रीन इज़ प्रीटी मच गुड, बट मैं जो टॉप 3 हैं वो मैं यहाँ लगा दूँगी सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि ये तीन सनस्क्रीन आर द बेस्ट। फिर उसके बाद रीकुल, एक्सपेंसिव but very good sunscreen, nice sunscreen, and it's just like the texture, the consistency of this sunscreen is beautiful. आंधी आ गई है, I'll get back with you। बाहर आंधी आ गई जो आपने वीडियो में देखा है। शायद सनस्क्रीन जो ये वाली है इट्स द बेस्ट अगर आपकी ड्राई स्किन है और अगर आपको विंटर्स में लगानी है तो ये वाली की सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। इट्स गुड, इट्स नॉट बैड फॉर समर्स, बट बहुत थिक कंसिस्टेंसी है तो सिर्फ विंटर्स में यूज़ करो, अदर देन दैट कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इज़ माई फेवरेट कैटेगरी विच इज़ लिप बाम। सो मेरे पास बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं एंड फॉरमोस्ट इज़ द वैसलीन, बट वैसलीन इज़ नॉट गुड, जो कि जेमिनी ने मुझे बताया इट्स नॉट क्रूल्टी फ्री एंड बहुत सारी फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से वैसलीन तो यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, बट इट यूज़ टू सूट मी वेल। अगर आपके बजट में वैसलीन फिट होती है तो गो फॉर इट, बट वी शुड ऑल स्टार्ट डूइंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट, तो थोड़ा वैसलीन से हट के रेकमेंड। रिसेंटली डिस्कवर्ड लिप बाम जो कि है Laneige लिप बाम। Laneige lip balm is so yum, so thick and so it's beautiful। अभी मैं सेकेंड वर्जन यूज़ कर रही हूँ उसका, बट द फर्स्ट वर्जन जो कि वो बेरी वाला है इट्स बॉम। अगर बजट में है और किसी दिन आपको अपने बर्थडे पे आपको खुद को गिफ्ट देना है तो प्लीज़ गो फॉर इट।
मैं वंस इन अ वाइल ऑर्डर करती हूँ। इस सेल के दौरान मैंने दोबारा रीफिल करा है, बट अगर आपको किसी भी सेल में वो सस्ता मिल जाए 600 से कम, ग्रैब इट, ले लो। मेरा बचपन वाला क्रेज़ जो कि थे लैक्मे लिप लाव और मेबेलिन बेबी लिप्स, वो तो ब्यूटीफुल हैं, उनमें टिंट तो होता ही है और वो मॉइस्चराइजिंग ही होते हैं, तो इट्स ब्यूटीफुल। अब जो लिप बाम है इट्स थोड़ा स्पेशल क्योंकि इसका टिंट लिप बाम जाने के बाद भी रहेगा, जो कि है मेबेलिन बेबी लिप्स ब्लूम। मॉइस्चराइजिंग इट्स नॉट दैट मच, बट इसके ऊपर आप कोई और लिप बाम लेयर अप कर सकते हो, बट इस लिप बाम से आपके लिप्स स्टेन हो जाते हैं। जीनियस। तो अगर आपको ये कहीं दिख जाए तो प्लीज़ ग्रैब इट। Next is very moisturizing lip balm from men's category, which is Nivea Men Lip Care. This one, it's very hydrating. मैंने पिछले साल और अभी भी है मेरे पास इसकी दूसरा ट्यूब, तो ये विंटर्स के टाइम इट्स सो मॉइस्चराइजिंग, समर्स के टाइम इट्स सो मॉइस्चराइजिंग, इट्स लाइक ऑल टाइम फेवरेट। और इट इज़ मॉइस्चराइजिंग, मतलब ये ड्राई नहीं करता लिप्स पे, वेरी लाइट वेट, तो आपको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर लड़के वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने भाई को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को, अपने किसी को भी गिफ्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये लिप बाम करो। अगर उनको पसंद आए तो आप खुद यूज़ कर लो। लास्ट मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया था हाइफिन फॉर अ वाइल। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो यू माइट हैव सीन मी अनबॉक्सिंग इट। तो ये हाइफिन का जो लिप बाम है इट्स गुड, मतलब मुझे समर्स में इतना पसंद नहीं आ रहा, बट विंटर्स में इट वॉज क्वाइट गुड। मे बी इट्स अ स्मेल प्रॉब्लम बट इट्स हाइड्रेटेड। ओके, इतना ये रोड का ड्यूब है, बट आई डोंट नो बिकॉज ऑफ सेम पेप्टाइड थिंग, आई थिंक उन्होंने ये समझा, बट आई थिंक डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगा बिकॉज प्राइस इज लाइक पोल्स अपार्ट, तो डिफरेंस तो होगा ही। बट इट्स मॉइस्चराइजिंग, इट स्मेल्स गुड, इट टेस्ट्स यम, बट इस समय इस गर्मी में जो कि आप यहाँ देख सकते हो, बट इट इज़ अ गुड लिप बाम। मैं रेकमेंड करना चाहूँगी अगर आपको वेनिला या पीची पसंद है तो आप इसका दूसरा वेरिएंट ट्राई कर सकते हो, बट ये वाला वेरिएंट इज़ गुड, इट्स डिलिश। अभी तक मुझे कोई स्लीपिंग मास्क नहीं मिला है, ठीक है। स्लीपिंग मास्क अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो प्लीज़ कमेंट में कर देना, मैं देख लूँगी एंड आई विल टेल यू गाइस माय रिव्यूज ऑन द शॉर्ट्स। दैट्स ऑल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ माय स्किन केयर फेवरेट्स। और या इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, लंबी वीडियो है। अगर आप मेकअप फेवरेट्स देखना चाहते हो तो कमेंट करना, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आएगी वीडियो तो। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज लेटर। एंड बताना आपको व्लॉग ज़्यादा पसंद है या ये थोड़ी चिट चैट वाली बातें वाला वीडियो ज़्यादा पसंद आता है। तो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंडे को विद अ लॉट ऑफ प्यार एंड अ लॉट ऑफ बातचीत। ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।